Good evening. Yesterday we completed tax on short-term capital gains. So short-term capital gains, there were provisions that 15% is charged on certain cases where shares and units, plus if surcharge is applicable, that surcharge and cess. We also did the part of right entitlement and right shares. Today we will start with long-term capital gains taxation. That means how gains from when it is a gains from long-term capital asset, how you tax the that particular gain. So first of all, remember for long-term capital gains, there are two rates. This I discussed yesterday also, 10% and 20%. Suppose you are having 10% rate, you want to go with 10% rate, then you cannot take the benefit of indexation. And if you want to take 20% rate, then you can take the benefit of indexation. So by trying both the options, you have to see in which option your liability to pay tax is less, and accordingly you have to go with that option. And long-term capital gains is exempt up to 1 lakh. Suppose you are having income long-term capital gains up to 1 lakh, it is not chargeable to tax. Above 1 lakh, it is chargeable to tax. So these are some of the basic taxation rules for long-term capital gains. And memorize the section. The section is 112A. The total income of SSC includes income chargeable under the head capital gains, and this rate of 10 and 20%, 10%. And one more thing, for debentures you don't get the benefit of indexation. डिवेंचर से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो, और अगर आप डिवेंचर ट्रांसफर किए हैं तो जब आप कैपिटल गेन्स निकालेंगे यू विल नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. Capital gains arise from transfer of long-term capital asset, either it is equity share or unit of equity-oriented fund or business trust. Either it is equity shares or equity or units of equity-oriented fund or business trust, and you have paid securities transaction tax. The meaning of securities transaction tax was discussed yesterday. Means when your whatever you are trading in, suppose the shares or units are listed on recognized stock exchange and you are doing the transaction through recognized stock exchange, then you have to pay a tax for this transaction, and that tax is known as STT. STT means securities transaction tax. जब आपका इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, सपोज इट इज द कैपिटल एसेट and STT has been paid. STT has been paid on what? When you acquired at that time also, when you transferred at that time also, क्योंकि दोनों में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. In the following cases, condition of levying STT is not applicable. शॉर्ट टर्म में भी था एक्सेप्शन क्या था? जब आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा था? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर. अगर उस स्टॉक एक्सचेंज में आप फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब आपको एसटीटी नहीं लगता था. और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको एसटीटी कब नहीं लगेगा? जब आप इक्विटी शेयर एक्वायर किए हैं बिफोर 1 अक्टूबर 2004. अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विटी शेयर है जो 1 अक्टूबर 2004 के पहले लिया है, तो आप क्या करेंगे? उस इक्विटी शेयर को जब आप बेचेंगे वो लॉन्ग टर्म पे आपको एसटीटी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है. एंड ये एक नोटिफिकेशन है. इस नोटिफिकेशन में जो भी सिक्योरिटीज नोटिफाइड है उसमें भी आपको एसटीटी पे करने का जरूरत नहीं है. और यूनिट्स का केस जब होता है तब आप एसटीटी कहाँ पे करते हैं? ट्रांसफर पे. ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, मतलब इक्विटी शेयर में एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों में होता है. यूनिट्स में ओनली ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स में आपको एसटीटी पे करना है. नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन कैसे होगा? दिस आई सेड 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख से ऊपर 10% का टैक्स है.
Rebate is not allowed. Rebate जो है 87A, that is not allowed from tax on aforesaid long-term capital gain. In case of resident individual or resident HUF where total income, ये आपका वही वाला है जो which I discussed yesterday कि अगर आपका total income long term capital gains minus करने के बाद falls below your minimum exemption limit, जो आपका कल वाला लास्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था उसी टाइप में है, उसमें क्या था लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, सेम यहाँ पे क्या होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है आपका और वो माइनस करना पड़ जाएगा आपको टोटल इनकम से, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन रेट अलग होता है, तो वो माइनस करने के बाद जो अदर इनकम में बचता है आपको, अदर इनकम मींस इनकम अदर देन योर कैपिटल गेन्स वाला इनकम, इट कैन बी फ्रॉम एनी हेड इन द 4 हेड्स, जो बचा उसमें से कोई भी 4 हेड का इनकम हो सकता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपका उसमें इनकम इतना बचा है व्हिच इज लेस देन 2,50,000, तो आप लॉन्ग टर्म में से उतना ले सकते हैं ताकि आपको, सपोज आपका 1,75,000 है लॉन्ग टर्म कैपिटल, ओके लॉन्ग टर्म, और आपका 1,75,000 ही अदर इनकम है, तो आपका क्या करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल पे, इस पे तो आपको टैक्सेशन रेट आपका 10% है, और अदर इनकम में जो 1,75,000 है उसमें आपको आपका स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द टोटल इनकम, आपका टोटल इनकम कितना है 3,50,000। अगर आपके पास आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं होता तो आपका क्या होता, 3,50,000 आपका टोटल इनकम होता, उसमें से 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बचा हुआ 1 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ता, बिकॉज ये आपका मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, दो यू आर हैविंग 3,50,000, आप 2.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं, बट इन दिस केस आप 2.5 लाख का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, बिकॉज 1,75,000 तो आपका लॉन्ग टर्म में है जिसका टैक्सेशन अलग रेट से होता है, तो आपके लिए कितना बचा है 1,75,000 ही सिर्फ बचा है, बट देयर इज अ बेनिफिट इन इनकम टैक्स कि आप ये 1,75,000 में इसको 2.5 लाख कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 1,75,000 में से यहाँ पे 75,000 रुपीज आप ले लीजिए और इसको इसमें ऐड कर देने से यू विल गेट हाउ मच 2,50,000, तो आपका 2.5 लाख का एग्जेम्पशन हो जाएगा, और इसमें कितना बचेगा, इसमें सिर्फ 1 लाख बचेगा, आपको 1 लाख पे टैक्स देना है। this was discussed yesterday also, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों में आपका ये बेनिफिट अवेलेबल है। नाउ सी देयर आर सम केसेस जहां आपको डिसाइड करना है कि हाउ यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ अगर आप इसका थ्योरी में जाइए, थ्योरी में क्या लिखा है, इफ द एक्विजिशन इज बिफोर 31 जनवरी 2018, तब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे आपका 4-5 सिनेरियो है, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू डिसाइड योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इफ you have acquired any asset before 31st January 2018, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, हायर ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स, हायर ऑफ, पहला है हायर योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना में आप एक्वायर किए हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31 जनवरी 2018 के पहले का केसेस में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है, उसके पहले का, उसके बाद का केसेस में नहीं एप्लीकेबल है। 31 जनवरी 2018 के पहले अगर आप कोई एसेट एक्वायर किए तो कॉस्ट ऑफ, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी दिस फॉर्मूला, हायर ऑफ COA मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू और द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब आपका सेल कंसिडरेशन, whichever is lower।
मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको 3 फिगर चाहिए। एक तो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, दूसरा आपको चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू, और तीसरा आपको चाहिए सेल कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन whichever is lower, वो फिगर, एंड योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन whichever is higher. Now you see this in these examples, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। See in scenario 1, इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायर करते हैं 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब हम 31 जनवरी 2018 के पहले का एक्विजिशन है। 100 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू 200 और सोल्ड 250। मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से अगर आप जाएं तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 100, फेयर मार्केट वैल्यू है 200 और सेल कंसिडरेशन है 250। तो 3 फिगर आपके पास है 100, 200, 250। व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 200 और 250 व्हिचएवर इज लोअर। क्या लोअर है? 200। और उसके बाद 100 और 200 व्हिचएवर इज हायर, मतलब 200। तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 200 रुपीस। Though you have acquired your that asset in 100 rupees, as per some अगर आप देखें आपका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 है, but it is acquired before 31st January 2018। इसीलिए 31st January 2018 के पहले अगर एक्विजिशन होता है तो आपको ये फॉर्मूला फुलफिल करना है, ये फॉर्मूला को ध्यान देना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, और एफएनडी और शेयर सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज लोअर, वो लेना है, एंड आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करना है व्हिचएवर इज हायर, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सी यहाँ पे आपका लिया हुआ है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 200 will be taken as your cost of acquisition। सी यहाँ पे जैसे बोला है घुमा के, यू सी यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, इसीलिए आपका फेयर मार्केट वैल्यू 200 होगा। बट यू डोंट सी इट इन दिस वे, यू सी इट इन दिस वे ओनली, कि आपका 200 है फेयर मार्केट वैल्यू, सेल कंसिडरेशन है 250, कौन सा लोअर है? 200, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 100। तो इसमें और इसमें 1 और 2 में कौन सा हायर है? फेयर मार्केट वैल्यू, इसीलिए 200। तो आपका एक्विजिशन कितना आ रहा है? 200 रुपया, और आप सेल कंसिडरेशन में कितना दिया हुआ है? 250 रुपया। तो आपका कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 50 इज योर कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट इज equity share is acquired on 1st January 2017 at 100 रुपया, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 200, और आपका सेल वैल्यू कितना है? 150। तो 150 और 200 whichever is lower, you have to take 150। फिर 100 और 150 whichever is higher, you have to take 150। सी सेकेंड केस में आपका कितना आता है? इक्विटी शेयर वाज एक्वायर्ड ऑन 1st जनवरी, इसका फेयर मार्केट वैल्यू, सेकंड वाले केस में भी फेयर मार्केट वैल्यू 100 था, और सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 था, फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 200, और सोल्ड कितना में? सेल प्राइस 150। ये दूसरा वाला में ये सिचुएशन है। तो 200 और 150, 200 और 150 में आपको क्या लेना है? लोअर। तो लोअर कौन सा है? 150, और 150 और 100 में आपको क्या लेना है? whichever is higher, मतलब actually your cost of acquisition becomes 150। now see one thing, 150 आपका cost of acquisition है and your sale price is also 150, मतलब आपका कैपिटल गेन्स 0, कोई कैपिटल गेन्स नहीं है। बट अगर ये नॉर्मल केस होता, मतलब 31 जनवरी 2018 के बाद अगर आप खरीदते, तो इसी सिचुएशन में आपका क्या देखता है? आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल होता 100 रुपीज और सेल कंसिडरेशन 150, मतलब 50 रुपीज का आपका गेन्स है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन केस दैट इफ यू परचेज इट बिफोर 31 जनवरी 2018, आपको इस फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना है, और इस फॉर्मूला से अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे तो आपका 150 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है और 150 आपका सेल कंसिडरेशन आ रहा है, एंड thus your capital gains is nil।
आपका कोई कैपिटल गेन नहीं है। नाउ ऐसा ये एग्जांपल्स आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है। फास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा फर्स्ट वाला? सिनेरियो 1 वाला। सिनेरियो 1 में क्या है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2017। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है आपका 100। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है आपका 200 और सेल कंसिडरेशन कितना है आपका 250। आपका फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन whichever इज लोअर और इसमें whichever इज हायर। ओके, तो फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन whichever इज लोअर कौन सा लेंगे आप? इसमें आता है आपका आंसर 200। ओके, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 200 में whichever इज हायर क्या होगा 200 रुपीज। दैट मीन्स आपका फाइनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आता है 200 और आपका सेल कंसिडरेशन कितना है 250। तो कैपिटल गेन्स कितना होगा 50। You need 3 figures: cost of acquisition, fair market value, sale consideration. फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन में आपको लोअर देखना है, फिर उस लोअर को उसमें से जो भी फिगर आपका लोअर आएगा उसको और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करना है whichever इज हायर। उसमें क्या आता है 200 और 100 को कंपेयर करने से 200 बिकम्स हायर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको सम बनाने के लिए 200 रुपीज देना पड़ेगा और आपका सेल कंसिडरेशन कितना है 250 मींस योर कैपिटल गेन्स इज 50। लेकिन अगर ये 1/8/2017 मतलब अगर 31 जनवरी 2018 के बाद होता, सपोज ये ट्रांजैक्शन आपका 1 फरवरी 2018 में होता, तो आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। आप क्या करते? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते 100 और सेल कंसिडरेशन लेते 250, आपका एक्चुअल गेन्स आता 150। But as it is before 31st January 2018, आपका कैपिटल गेन्स आ रहा है ओनली 50। समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट इज सी। इन ए केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF अगर रेसिडेंट है, मतलब ये जो प्रोविजन है आपका रेसिडेंट पे एप्लीकेबल है, नॉट ऑन नॉन रेसिडेंट। क्या एप्लीकेबल है? 20% का रेट है फॉर योर क्या बोलते हैं कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ सी, और यहाँ ये रेसिडेंट का बात हो गया 20%, नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी। बट ये नॉन रेसिडेंट क्या होगा? नॉट बीइंग अ कंपनी, कंपनी नहीं होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट, नॉट बीइंग अ कंपनी और सपोज एक फॉरेन कंपनी। दोनों का कंडीशंस क्या है? कैपिटल गेन्स अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ये जो कैपिटल एसेट बेच रहा है वो कौन सा है? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ कंपनी। Such gain is computed without giving effect to first proviso to section 48. First proviso to section 48 क्या था? यू रिमेम्बर हम लोग एक कन्वर्शन वाला प्रोविजंस पढ़े थे कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस कन्वर्ट कैसे करना है इंडियन में। यू हैव टू टेक द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट एंड द एवरेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रेट। वो जो प्रोविजन था वो प्रोविजन आपको कवर नहीं करना है या आप पे एप्लीकेबल नहीं है जब आप एक नॉन रेसिडेंट हो बट नॉट अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी और आपका क्या हो रहा है? यू आर ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वो जो प्रोविजन था ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इंडियन करेंसी बाय टेकिंग द रेट्स,
वहां पे जो रेट्स का फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से आपको कन्वर्शन करने का जरूरत नहीं है एंड सच गेन इज कंप्यूटेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू इंडेक्सेशन बेनिफिट, और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर नॉन रेजिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है वो लोग को क्या बेच के, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ अ कंपनी को बेच के। तो आपका दो चीज नहीं लगेगा, आपको आपका जो वो रेट्स था जिससे आपको कन्वर्ट करना था वो वाला प्रोविजन नहीं फॉलो करना है एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको नहीं लेना है। और ये तो हम बोल ही दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चार्जेबल कितना है 10% और 20% सरचार्ज। Now this is your same example वही, see other income 1,70,000 और long term capital gains कितना है 90,000। तो अब अगर 1,70,000 means you can still take the benefit of 80,000 rupees। आप कैसे 80,000 rupees का बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज आपको 2,50,000 का बेनिफिट मिलता नॉर्मल केस में, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना है 90,000। तो 1,70,000 आपका अदर इनकम है, उसमें आप 80,000 का बेनिफिट अभी भी ले सकते हैं। मतलब 1,70,000 में आप 80,000 ऐड कर देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट सम 1,70,000 में आप 80,000 ऐड कर दीजिए एंड यू टेक द बेनिफिट ऑफ 2,50,000, और 90,000 में से आप 80,000 यहाँ ले चुके हैं, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली 10,000 जिसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स देना पड़ेगा। ओनली ऑन 10,000 रुपीज यू हैव टू गिव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। और दिस वाज डिस्कस्ड कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर चैप्टर 6A। 6A का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में नहीं मिलता, इसीलिए कैपिटल गेन्स में अपना अलग कुछ डिडक्शंस है, those deductions you will get. Okay, next is option available on capital gains in respect of shares, securities and units. Long-term capital asset being security listed in any recognized stock exchange are transferred. अब क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और क्या है वो सिक्योरिटी, बट इट इज अ लिस्टेड सिक्योरिटी। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप 10% से कैलकुलेट करिए विदाउट इंडेक्सेशन और 20% से कैलकुलेट करिए विद इंडेक्सेशन। जो आपको सही जो आपका कम टैक्स आए उसमें आप कर सकते हैं। फॉर दिस यू सी दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, मिस्टर जादू हैज सोल्ड फॉलोइंग एसेट्स। क्या क्या वो बेचा है, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स। तीन चीज बेचा है, कॉस्ट दिया हुआ है, सोल्ड फॉर दिया हुआ है और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया हुआ है। मतलब दिस यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम योर सेल कंसिडरेशन। और वो कितना में बेचा है, आपको सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। नाउ यहाँ पे व्हाट यू विल डू, सी लैंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके पास तीन चीज ये बेच रहा है, एक लैंड, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक डिबेंचर्स। आप देखिए पहला वाला जो ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 1 में वो क्या कर रहा है, 20% टैक्स ले रहा है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहा है। सी दिस इज हियर इट इज रिटन कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हायर रेट पे टैक्स करेंगे। हायर रेट मतलब 20%, हम 10% वाला में नहीं जाके 20% वाला में जा रहे हैं, but I am taking the benefit of indexation because when you are going with higher rate that is 20%, तब आप benefit of indexation ले सकते हैं। सी लैंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल कंसिडरेशन कितना है, लैंड इज 15 लाख रुपीज, इतना में बेचा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप 1 लाख रुपया में बेचा। आप डिबेंचर्स यहाँ पे नहीं ले सकते बिकॉज you are calculating at 20% rate and you are taking what indexation benefit, but ये indexation benefit आपको debentures में नहीं मिलेगा।
इसीलिए आप डिवेंचर्स में इफ यू आर गोइंग विद हायर रेट एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट, आपका डिवेंचर्स का ऑप्शन में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कितना दिया हुआ है, 40,000 फॉर लैंड एंड 5,000 फॉर योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 40,000 ऑन लैंड और 5,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब यहाँ पे कितना 95,000 और यहाँ पे आपको 14 lakh 60,000. This becomes your net sale consideration. 14 lakh 60,000 और 95,000 ये आपका नेट सेल कंसिडरेशन है। उसके बाद आप जैसा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप अपना इंडेक्सेशन करिए। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नथिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो दिस इज द सोल्यूशन जहां आप 20% का टैक्स लगाएंगे और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे तो आप डिवेंचर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे ही यू सी ऑल्टरनेटिव 2 में आप लैंड में कुछ नहीं कर सकते बिकॉज लैंड में दिस 20% का रेट इज नॉट एप्लीकेबल। लैंड के लिए आपको 10% ही जाना पड़ेगा विदाउट इंडेक्स, सॉरी लैंड के लिए आपका सिर्फ 20% ही एप्लीकेबल है। यू कैन नॉट गो विथ 10%। 10% के साथ आप क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज यू गो एंड सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा था long-term capital gains shall be taxable at 10% surcharge plus education cess, health and education cess, और in any other case, मतलब जब आपका सिक्योरिटीज और शेयर्स का बात रहता है तो आप 10% वाला ले सकते हैं, बट आपका जब अदर केस है दैट मीन्स लैंड है, बिल्डिंग है, ऐसा कुछ है तो आपको हमेशा 20% में ही जाना पड़ेगा विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो आपका जब 20% का ऑल्टरनेटिव से कर रहा था तभी भी किया है और आपका जब 10% वाला ऑल्टरनेटिव से कर रहा है तभी भी किया है। So these are the things which you have to keep in mind. लैंड में आप 20% ले सकते हैं, 10% कभी ले नहीं सकते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप दोनों ले सकते हैं, 20% प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट, 10% विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट। और डिबेंचर्स में यू कैन नॉट टेक 20% प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट, उसमें आपका सिर्फ 10% विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट आएगा। सो फॉर डिफरेंट सिक्योरिटीज एंड डिफरेंट एसेट्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का चार्जेबिलिटी अलग है कि कहाँ 10% है, कहाँ 20% है। यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, now we will do from here deductions from capital gains। कैपिटल गेन्स में क्या क्या आपको डिडक्शन मिलता है। See, there are 9 sections जिसमें आपको कैपिटल गेन्स का डिडक्शन दे रहा है। It is starting from 54, 54, 54D, B, D, EC, EE, F, G, GA and GB. These are the 9 sections in the series of 54 जो आपको डिडक्शन देगा कैपिटल गेन्स में। Now क्या डिडक्शन देगा आपको? फर्स्ट जो 54 था वो आपको हम कल भी बताए थे। 54 में क्या है, घर बेच के आपको घर खरीदना है। अगर आप घर बेच दिए और उसमें से आपका जो कैपिटल गेन्स हो रहा है उसी को अगर आप वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं टू बाय होम, तब आपका जो कैपिटल गेन्स है उसमें आप जितना इन्वेस्ट करेंगे वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा इन्वेस्ट करेंगे तो पूरा गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट घर बेच के घर खरीदने का कुछ कुछ कंडीशंस है। व्हाट आर द कंडीशंस? एसएससी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए ऑब्वियसली। सपोज हाउस प्रॉपर्टी, 54 में हाउस प्रॉपर्टी बेचना है आपको, घर बेच के घर खरीदना है। हाउस प्रॉपर्टी आप अगर है तो वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ठीक है, ए फर्स्ट कंडीशन इज लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब योर होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 36 मंथ।
3 साल से ज्यादा हो गया आपको ये घर यूज करते, तो आपका ये लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी हो गया। एन एसएससी मस्ट एक्वायर one new residential house within prescribed time limit. What is the prescribed time limit? The prescribed time limit is जिस दिन आप अपना पुराना घर बेचे, सपोज दिस इज योर ओल्ड हाउस, जिस दिन आप ये पुराना घर बेचेंगे उसके 1 साल पहले, सपोज यू आर सेलिंग इट ऑन 20th October 21, आज के डेट पे आप बेच रहे हैं, तो 20th October 20, ये 1 साल में या तो आप क्या करेंगे, एक नया घर परचेज करेंगे, ओके, यू विल परचेज, एंड यहां से 2 साल बाद इस टाइम पीरियड में आपको ये घर परचेज करना है। ये ओल्ड घर आप कब बेच रहे हैं, 20 October 21, सपोज आज आप ओल्ड घर बेच दिए, तो आज से 1 साल पहले में कोई एक डेट में अगर आप घर खरीदे हैं, या फिर अगर अभी तक घर नहीं खरीदे हैं, तो आप जितना इसमें से अर्न किए, वॉट एवर योर कैपिटल गेन्स ऑन 2010-21, उसको आपको इन्वेस्ट करना है एक नया घर में विद इन 2 years, मतलब 20th October 23 तक आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है फॉर बाइंग अ न्यू होम। तो उससे क्या होगा, आज का जो आप कैपिटल गेन्स हुआ है आपको वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट कैपिटल गेन। एंड सपोज दिस वाज द केस फॉर परचेज, परचेज मतलब आप घर बना बनाया घर आप परचेज कर रहे हैं। सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट, आपको अगर घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट वाला केस है, तब आपको पहले वाला जो 1 साल है उसका बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट कैसे है, 2010-21 से लेके 2010-24 तक 3 साल तक आपको नया घर बना लेना है। परचेज में 1 साल पहले और 2 साल बाद, जिस दिन आप बेच रहे हैं उसके 1 साल पहले और 2 साल बाद के अंदर आपको परचेज करना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में पहले का नहीं है, ये जो पहले का 1 साल है दिस इज नॉट देयर, सीधा आपका 2-3 साल का टाइम है। सी दोनों में 3 साल का टाइम है, परचेज में भी और कंस्ट्रक्शन में भी, लेकिन परचेज में आपका 1 साल पुराना भी दिया है, बट कंस्ट्रक्शन में 1 साल पुराना वाला नहीं है। जिस दिन आप ट्रांसफर करेंगे उससे विद इन 3 years यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर न्यू हाउस। अगर आप ये करते हैं तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा कैपिटल गेन्स। नाउ सपोज यू आर नॉट परचेज, अब आज आपको कैपिटल गेन्स हुआ है, आज आपके पास पैसा आया है, मे बी इट विल टेक 1-2 month ऑफ टाइम, उसके बाद यू आर स्टार्टिंग दिस कंस्ट्रक्शन, तो आप ये 1-2 महीना अपना परचेज, अपना सेल का पैसा, और ये कैपिटल गेन का जो कैपिटल गेन्स का नहीं, सपोज आपका जो सेल का पैसा है वो सेल का पैसा आप एक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड दैट अकाउंट इज नोन एज कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। उस अकाउंट स्कीम में आपको अपना पैसा जमा करके रख सकते हैं, बट यू हैव टू यूज दैट मनी if you are going for construction within 3 years from the date of purchase, and if you are within 3 years from the date of sale, जिस दिन सेल किए उसमें से 3 years में आपको वो पैसा यूज करना है। एंड इफ यू हैव परचेज करने का अगर आपको मन में है घर, तो आप या तो 1 साल पहले विद इन लास्ट 1 year आप घर खरीद चुके हैं और आज आप अपना पुराना घर सेल किए, या फिर आज आप अगर अपना घर सेल किए तो आप नेक्स्ट 2 years में उस पैसा से घर खरीद सकते हैं। नाउ दिस वाज द ऑप्शन जब आपका नॉर्मल बात हो रहा है, नॉर्मल बात मतलब नॉर्मल कैपिटल गेन्स का बात कर रहे हैं, बट सपोज वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से कम है आपका कैपिटल गेन्स, कैपिटल एसेट आप जो बेचे, घर बेचे, और आप घर बेच के जो आपका कैपिटल गेन हुआ वो 2 करोड़ से ज्यादा है,
तो आपके पास 2 घर खरीदने का या बनाने का ऑप्शन है। व्हाट इज द ऑप्शन? नॉर्मल कंडीशंस में 2 करोड़ तक आपका क्या है कि आप एक ही घर खरीद सकते हैं, एक ही घर बना सकते हैं। लेकिन आपका अगर इट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, कैपिटल गेन्स अगर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप 2 घर खरीद सकते हैं, 2 घर बना सकते हैं। And this option you can avail only once in your lifetime. Throughout lifetime आपको ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा। मतलब घर बेच के घर खरीदने वाला स्कीम जो है वो आप एक ही बार अपना लाइफ में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर बार एक नया घर खरीदते हैं फिर उसको लॉन्ग टर्म करके उसको बेच देते हैं, अगेन यू परचेज अ न्यू होम और यू लाइक दिस अपना कैपिटल गेन्स करते जा रहे हैं और घर खरीदते जा रहे हैं और अपना टैक्स बचाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन सिर्फ एक बार एप्लीकेबल है, ठीक है। द ऑप्शन 2 हाउसेस इन इंडिया, इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है? एसएससी हैज एक्सरसाइज्ड दिस ऑप्शन, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for same or any other assessment year. उस असेसमेंट ईयर में तो कर ही नहीं सकते और कोई असेसमेंट ईयर में भी नहीं कर सकते। मतलब दिस इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। नाउ सी, जब आप हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो ये क्या है? ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या तो यू हैव लेट आउट या खुद यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर, बट इसका इनकम आप चार्ज कर रहे हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट आप जो नया घर परचेज खरीदे करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है उसका इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी का हेड में ही टैक्सेबल हो। वो आप अपना एम्प्लॉइज के लिए क्वार्टर्स बनाइए या कुछ और वैसा हाउस प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं। यू कैन गिव इट टू योर एम्प्लॉइज फॉर यूज या उसका कोई बिजनेस पर्पस कर सकते हैं। मतलब आपका जो घर बेच रहे हैं that घर should be taxed under the head house property, but the house which you are buying या you are constructing वो उसका इनकम जरूरी नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी का हेड में टैक्स हो। हाउस प्रॉपर्टी का हेड में टैक्स नहीं हो रहा है, मतलब दैट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, दैट इज नॉट लेट आउट और दैट इज नॉट यूज्ड फॉर मतलब सेल्फ रेसिडेंट, खुद के लिए भी नहीं यूज कर रहे, लेट आउट भी नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? अपना बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो जब आप बिजनेस में यूज करते हैं घर को, तब वो घर का इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ सी, ये आपका पूरा इस सेक्शन में पूरा इतना ही बात लिखा हुआ है। कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, चाहे वो लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी टैक्सेबल होना चाहिए अंडर सेक्शन 22, एंड इफ यू रिमेंबर सेक्शन 22 इज द चार्जेबल सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अंडर सेक्शन 22 मतलब हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल है। लैंड ट्रांसफर्ड अपॉर्टेनेंट टू हाउस प्रॉपर्टी को भी हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये आप हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर में पढ़े थे। हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड अपॉर्टेनेंट टू हाउस प्रॉपर्टी। न्यू रेसिडेंशियल हाउस जो आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं may not be taxable under section 22, मतलब वो जरूरी नहीं है आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो, वो घर आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, बट द वन व्हिच यू आर सेलिंग दैट शुड बी यूज्ड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तभी आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। For purchase within a period of 1 year before or 2 years after the date of transfer, this said, ये समझा दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 3 ईयर का टाइम मिला है, लेकिन आपका क्या है? आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद विदिन 3 इयर्स आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। और इसका जो पैसा आपके पास है वो पैसा आप कहाँ जमा कर सकते हैं? कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में। वो अकाउंट स्कीम क्या है वो वी विल डिस्कस नीचे। रिडक्शन कितना मिलेगा? जितना आप नया एसेट में इन्वेस्ट किए या कैपिटल गेन्स व्हिचएवर इज लोअर, बिकॉज आपको सपोज ये घर बेच के कैपिटल गेन्स कितना हुआ है? 3 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, और आप जो नया घर खरीदे हैं वो 4 करोड़ का नया घर खरीदे हैं।
तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 3 करोड़ ही मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स को आपको इन्वेस्ट करना था। एक्स्ट्रा आप पैसा जितना भी लगा के घर खरीदिए, दैट इज योर डिसीजन, लेकिन आपका एग्जेम्प्ट कितना होगा, ओनली योर कैपिटल गेन्स, मतलब सिर्फ 3 करोड़। सपोज यहाँ 4 करोड़ नहीं होते होता 2 करोड़ आप इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको एग्जेम्पशन कितना का मिलता है, 2 करोड़, बिकॉज आपका कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो कैपिटल गेन जितना एग्जेम्प्ट होगा या उससे कम, व्हिचएवर इज लोअर, दैट्स व्हाई इट इज वेरी ऑब्वियस आल्सो। आपको अगर कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन के लिए ये कंडीशन दिया गया है एंड यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 2 करोड़, तो ऑब्वियसली वो 1 करोड़ का आपको बेनिफिट कैसे देगा, उसको आपको टैक्स देना ही पड़ेगा उस पर। या तो आप 3 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कीजिए, या अगर आप उससे कम इन्वेस्ट करेंगे तो जो बैलेंस है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सपोज 4 करोड़, तो आपको 3 करोड़ का एग्जेम्पशन मिलेगा, 1 करोड़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। Within 3 years from the date of acquisition, the new asset, अगर आप बेच देते हैं, नाउ सपोज आप न्यू एसेट खरीदे, कब खरीदे, आपको 23 तक खरीदना था, यू परचेज इट ऑन 2010 to 22, एक साल में, एक साल बाद आप अपना नया एसेट खरीद लिए। तो 2010-22 में जब आप अपना एसेट खरीदे, उसके बाद योर लॉक इन पीरियड इज 3 years। मतलब 2010-25 तक आप ये घर बेच नहीं सकते। अगर आप ये घर बेच देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के पहले, 3 साल बिना होल्ड किए अगर आप ये घर बेच देते हैं, तो आपको जो ये बेनिफिट मिला था ना, 3 करोड़ 2 करोड़ जितने का भी, ये सारा बेनिफिट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर जब आप बेचेंगे। आपका ये बेनिफिट ले लिया जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। सो योर लॉक इन पीरियड इज 3 years, मिनिमम 3 years आपको नया घर रखना पड़ेगा। या तो आप परचेज किए या कंस्ट्रक्ट किए, जो भी किए, बट वो घर आपको 3 साल अपने पास रखना पड़ेगा। यू हैव टू यूज इट या नहीं यूज इट वो अलग बात है, बट आपको 3 साल में वो घर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेल दैट हाउस फॉर 3 years। और ये घर बेच के इसका जो पैसा है, इस तारीख को आप कैपिटल अकाउंट स्कीम में डाल दिए। कैपिटल अकाउंट स्कीम में अगर आप ये पैसा डाल दिए और आप 3 साल तक अगर यूज नहीं किए ये पैसा, तो ये पैसा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप अकाउंट में डाल के यू विल एंजॉय द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट मनी। आपको घर में यूज करना ही है वो पैसा, और अगर आप अकाउंट में डाल के 3 साल तक यूज नहीं करते हैं, तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, जो भी बेनिफिट आपको मिला था वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। और एक क्या चीज है, आपका कंस्ट्रक्शन या परचेज खत्म होना चाहिए। मतलब जब आप 28 अक्टूबर 21 को घर बेचे, उसके बाद सपोज 2 साल में आप घर परचेज कर लिए, बट यू परचेज इट, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और 2 साल खत्म हो गया, तो आपका कोई मतलब आप पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। योर परचेज शुड बी कंप्लीट। इट्स नॉट दैट कि आपका लीगल सारा काम भी कंप्लीट हो जाए, बट आपका परचेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। दो योर रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस कैन बी डन लेटर, वो 2 साल के बाद भी अगर होता है तो हो सकता है, बट आपका परचेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ सपोज यू आर हैविंग 2 हाउस। 2 हाउस कैसे है आपका, एक ये और ऊपर एक फ्लोर ऐसा है आपका, और आप क्या किए, ये घर को बेच रहे हैं, ये घर अपने पास है, ये सोल्ड, तो भी आपको सेक्शन 54 एप्लीकेबल होगा। मतलब सेक्शन 54 का आप डिडक्शन फॉर दिस पोर्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्डिंग या पूरा घर बेचना है, तो आप जो भी पार्ट बेचेंगे उस पे आपको सेक्शन 54 का डिडक्शन मिलेगा। बट वो जो पार्ट आप बेचे वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज आपका ये घर है और इस घर में ऊपर वाले घर में किचन नहीं है, तो दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट यूनिट आपका, क्योंकि किचन नहीं है तो वो घर कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। अगर वो खुद में इंडिपेंडेंट है तो आप वो यूनिट बेच सकते हैं।
इट डजंट मैटर कि आप पूरा बिल्डिंग बेचे या आधा बिल्डिंग बेचे, बट व्हाटएवर यू आर सेलिंग दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट यूनिट, वो इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। See, this is capital gains account scheme। ये जो स्कीम है इसमें आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड आपका पैसा कहाँ, ये अकाउंट आपको कहाँ खोलना पड़ेगा? इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई। एसबीआई में आप अपना ये अकाउंट खुला के अपना पैसा डिपॉजिट करके रखिए। सपोज आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया एंड यू हैव डिपॉजिटेड द मनी, जस्ट आपके पास रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया, तो आपको एग्जेम्पशन लेना है क्योंकि यू हैव प्लान्ड कि हम नेक्स्ट 2 साल में घर खरीदेंगे। आपको एग्जेम्पशन लेना है इसी साल। आप एग्जेम्पशन कैसे लेंगे? यू हैव टू शो द प्रूफ, यू हैव टू शो द प्रूफ कि आपने वो घर यू हैव टू शो द प्रूफ कि आपने वो पैसा कैपिटल अकाउंट स्कीम में डाल दिया है। दिस प्रूफ के साथ आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द एग्जेम्पशन। आप एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। ओके this was all about section 54. Next is section 54B। 54B में क्या था? लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड आप बेच के आपको लैंड खरीदना है। नाउ एग्रीकल्चरल लैंड मतलब दैट शुड बी अ कैपिटल एसेट। अब एग्रीकल्चरल लैंड अगर कैपिटल एसेट होना पड़ेगा तो वो एग्रीकल्चरल लैंड फॉर श्योर अर्बन एरिया में होना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया डज नॉट बिकम अ कैपिटल एसेट। ये आप फर्स्ट डे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में पढ़ा है कि एग्रीकल्चरल लैंड इफ इट इज इन रूरल एरिया देन इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। मींस आपका एग्रीकल्चरल लैंड आपको सेल करना है और वो कैपिटल एसेट होना पड़ेगा। कैपिटल एसेट होना पड़ेगा मतलब आपका वो डेफिनेटली अर्बन एरिया में है, वो आप बेचेंगे। ओके फाइन, बेच दिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जो पैसा का कैपिटल गेन्स हुआ है उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है टू परचेज एन एग्रीकल्चरल लैंड। अगेन आपको एक एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना है। सो 54 में घर बेच के घर खरीदना था, 54B में एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है। बट 54 में घर बेच के जब आप घर खरीद रहे थे आपका वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होने से भी चलेगा। वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड जब आप बेचेंगे दैट शुड बी अ कैपिटल एसेट, बट व्हेन यू आर purchasing a new agricultural land with the investment with the capital gains, वो आपका नॉन कैपिटल एसेट भी हो सकता है। नॉन कैपिटल एसेट मतलब आप रूरल एरिया में भी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं। So when you are selling the agricultural land, that should be a capital asset. But when you are purchasing the agricultural land, that might not be a capital asset. वो capital asset नहीं भी अगर है तो भी आपको section 54B का benefit मिलेगा। अब कैपिटल जब कब एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता? जब वो रूरल एरिया में है। मतलब या तो आप अर्बन एरिया में भी खरीद सकते हैं, रूरल एरिया में भी खरीद सकते हैं, बट बेचने के टाइम आप अर्बन एरिया में ही बेचेंगे सिर्फ। एंड कैपिटल एसेट जो आपका होगा वो एग्रीकल्चरल लैंड बेचने के पहले मिनिमम 2 साल आप उस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर चुके होंगे। If you have not done for minimum 2 years, तब आपको सेक्शन 54B का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे 54 में था कि आपका जो घर है वो लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए, मतलब आप उसको 3 साल से ज्यादा यूज कर चुके हैं तब आप उसको बेच लें, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड में आपको सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होगा कि दिस इज माय एग्रीकल्चरल लैंड, वहां पे एक्चुअल एग्रीकल्चर होना चाहिए for a minimum 2 years before you are selling the land. लैंड बेचने के पहले 2 साल मिनिमम आपको उस पे एग्रीकल्चरल का काम करना पड़ेगा, मतलब आपको फार्मिंग करना पड़ेगा उस लैंड पे।
एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करना पड़ेगा। नाउ इट माइट बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली आपको क्या बोल रहा है, मिनिमम 2 साल आपको एग्रीकल्चर करना है। इससे ही ये प्रूव हो जाता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी आपको हो सकता है, बिकॉज अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म होता तो आपको 3 साल यूज करना पड़ता, 36 मंथ्स घर के लिए। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म था, आपको घर मिनिमम लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो मिनिमम 3 साल। लेकिन एग्रीकल्चरल में अगर आप 2 साल भी एग्रीकल्चर का काम कर चुके हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। Now suppose you have got that agricultural land from a partition of HUF, या फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड कोई इंडिविजुअल का नहीं है, HUF का है, तो भी आपको HUF उसको 2 साल एग्रीकल्चरल किया होगा उस पे, तब आप उसके बाद अगर बेच रहे हैं तब आपको 54B का बेनिफिट मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। See in 2B where SSC obtains land on partition, HUF का पार्टीशन हुआ है और उसके बाद उसको वो लैंड मिला है, तो भी SSC और HUF दोनों मिला के मिनिमम 2 साल उस पे एग्रीकल्चर का काम किया है, तो ही उसके बाद वो बेच रहा है, तो ही आपको 54B का एग्जेम्पशन मिलेगा, एल्स यू विल नॉट गेट द डिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल, you will not get the benefit of 54B। और थर्ड पॉइंट है एसएससी मस्ट परचेज अ न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब न्यू लैंड बोला है, कैपिटल एसेट नहीं बोला है, न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब वो लैंड आप अर्बन रूरल कहीं भी खरीदिए, इट डजंट मैटर, आपको 54B का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेचने के टाइम आपका वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, दैट मीन्स आपका अर्बन एरिया ही होना चाहिए। और आपको खरीदना कितना दिन में है, विद इन 2 years ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आप बेचिए उसके 2 साल में आपको एक नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है। और इसमें भी आपको कैपिटल अकाउंट स्कीम का बेनिफिट है, मतलब आप अपना कैपिटल गेन्स का पैसा कैपिटल अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करके रख सकते हैं। और डिपॉजिट कितना दिन आपको करना है, वही 2 साल। 2 साल पहला वाला में 3 साल था, इसमें 2 साल। 2 साल तक आपको डिपॉजिट करके रखना है और यूज करना है। अगर आप 2 साल से ज्यादा हो गया और वो पैसा यूज नहीं किए तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। Now see one case study is discussed over here। हम क्या बोल रहे हैं तब से कि एग्रीकल्चरल लैंड जब आप बेचे तब आपका कैपिटल एसेट होना चाहिए। लेकिन आप अगर एग्रीकल्चरल लैंड बेचे, आपका कैपिटल एसेट था, सपोज अर्बन एरिया में आप बेचे, आपका कैपिटल एसेट था। अर्बन एरिया में बेचने के बाद आप खरीद लिए इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में यू परचेज्ड, नाउ व्हाट हैपेंस, दैट इज नो मोर अ कैपिटल एसेट। अब आपका कैपिटल एसेट नहीं हुआ वो, तो अब आप रूरल एरिया में अगर अपना लैंड वापस बेचने जाएंगे तो वो आपका कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होगा और आपको सेक्शन 54B का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। दिस इज द थिंग व्हिच इज डिस्कस्ड इन दिस केस। सी एसएससी सोल्ड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड बेच दिया और इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल गेन्स रूरल एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, क्यों किया वो, ताकि उसको इस डिडक्शन मिल जाए अंडर दिस सेक्शन। एंड इमीडिएटली सोल्ड सच न्यूली एक्वायर्ड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेच दिया ताकि उसको नया लैंड मिल जाए। नाउ यहाँ पे लॉकिंग पीरियड कितना है, 3 इयर्स। लास्ट में भी 3 इयर्स था लॉकिंग पीरियड, यहाँ भी 3 इयर्स है। लेकिन वो क्या किया, वो ये काम इसीलिए किया ताकि उसको कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं देना पड़े, क्योंकि वो अर्बन लैंड बेचा, उसका कैपिटल गेन्स अर्बन लैंड जब वो बेचा उसको जो कैपिटल गेन्स हुआ वो पैसा रूरल में डाल दिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड, जो उसको कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं देना पड़ा, खत्म उसका कहानी वहां पे। नाउ व्हाट हैपेंड, अब ये रूरल एरिया में हो गया ये लैंड। अब वो क्या करेगा, रूरल एरिया का लैंड वो तुरंत बेच सकता है, बेच देगा तो क्या होगा, उसको उसका पैसा मिल जाएगा और कैपिटल गेन्स का टैक्स भी नहीं लगेगा, बिकॉज रूरल एरिया का लैंड तो एग्रीकल्चरल, रूरल एरिया का लैंड तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है। तो टू मेक मनी वो डायरेक्टली नहीं बेच के वो इस तरीके से बेच रहा है, अर्बन एरिया का लैंड, अर्बन लैंड को सेल कर दिया और रूरल लैंड एक्वायर कर लिया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ जो कैपिटल गेन्स का टैक्स लगता
वो उसका सेव हो गया। हाउ? क्योंकि वो रूरल एरिया में इन्वेस्ट कर दिया। खत्म, ये कहानी यहाँ पे खत्म। रूरल एरिया में वो इन्वेस्ट कर दिया, उसको जो भी कैपिटल गेन्स हुआ था उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। बट नाउ ही नीड्स मनी, उसको तो एक्चुअली पैसा चाहिए, वो इसीलिए अर्बन लैंड बेचा था। अर्बन लैंड बेच के उसको पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, बट उसके कैपिटल गेन्स पे उसको टैक्स देना पड़ जाता। तो वो क्या किया, वो बचाने के लिए, वो टैक्स बचाने के लिए वो रूरल लैंड में खरीद लिया। तो आपको 54B का एग्जेम्पशन मिल गया। But if he again invested that money in rural land, ultimately what happened? Ultimately the thing which happened is he did not have money with him. उसके पास तो पैसा नहीं है, वो तो वापस रूरल लैंड खरीद के सारा पैसा खत्म कर दिया। बट एक्चुअली ही रिक्वायर्स मनी, तो अब वो क्या करेगा, अब ये रूरल लैंड को बेच देगा। तो उसके पास, एंड व्हाट ही विल गेट, उसको जो पैसा चाहिए था वो पैसा उसके पास आ जाएगा। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, इसीलिए इस पे कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। इन दिस वे उसके पास पैसा भी आ गया और वो टैक्स भी बचा दिया। जब अपने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, वी स्टडी की टैक्स में जो लूपहोल्स है, वो लूपहोल्स का फायदा उठा के आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द लूपहोल जिसका फायदा उठा के आदमी टैक्स अवॉइड कर सकता है। कैसे टैक्स अवॉइड किया, वो अर्बन लैंड को बेच दिया। अर्बन लैंड बेचने से उस पर कैपिटल गेन्स का टैक्स आ गया, बट वो इन्वेस्ट कर दिया रूरल लैंड में। जैसे ही वो रूरल लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसका 54B एप्लीकेबल हो गया और वो कोई पैसा उस पर टैक्स नहीं लगा। एंड देन रूरल लैंड को बेच दिया। रूरल लैंड को बेचने से वो कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बिकॉज रूरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सो दिस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग वाला हेडिंग में जो हमने टैक्स अवॉइडेंस पढ़े थे, कि आप लूपहोल्स का फायदा उठा के ऐसे टैक्स अवॉइड कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट लूपहोल। ये लूपहोल का फायदा उठा के कैपिटल गेन्स का टैक्स आप बचा सकते हैं। So this is only discussed in this land, in this case. इस केस में यही है, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, एंड उसके बाद इमीडिएटली सोल्ड सच न्यूली एक्वायर्ड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। नहीं तो अगर वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीदता, वो अगर वापस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता, तो क्या होता, आपका लॉकिंग पीरियड 3 साल का था, 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे। और अगर आप बेच दिए तो आपका जितना भी गेन्स हुआ था वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए he did not purchase in again urban, वो कहाँ परचेज किया, रूरल, ताकि आपको दोनों बेनिफिट मिले, 54B का भी बेनिफिट मिले और उसका कैपिटल एसेट भी नहीं रहे सेकंड टाइम सेल करने पे। क्योंकि अगर सेकंड टाइम सेल कर रहा है, he is not selling a capital asset, and if you are not selling a capital asset, the capital gains का चैप्टर आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। Now, since new agricultural land is sold before 3 years, therefore exemption is revoked and benefit जो भी claim हुआ था subtract होना चाहिए उसका नया asset में से, cost of acquisition से। However, ये actual में ये होना चाहिए था, but नहीं हो पाया because the new agricultural land is not liable to capital gain as it is not a capital asset. वो capital asset ही नहीं है, तो आपका capital gains आता ही कहाँ से है? There is no capital gains for you. कैपिटल एसेट होने से ही सारा ये जो कैपिटल गेन्स का चैप्टर है, ये द स्टोरी बिगिंस विद अ कैपिटल एसेट, एंड इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट तो कोई बात ही नहीं है, इस चैप्टर में जो भी लिखा है क्या ही फर्क पड़ता है उससे। सो दिस इज अ केस एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मे भी आपका एग्जाम में भी ऐसा कुछ केस पूछ सकता है। सो जो भी केस एग्जांपल्स, प्लीज वो सब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका कोई सेक्शन के साथ केस है, एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशंस है, दैट मेक्स दैट सेक्शन इंपॉर्टेंट। क्योंकि नॉर्मल लिखा हुआ है उसके साथ कोई इलस्ट्रेशन या एग्जांपल नहीं है, वो प्रोविजंस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है देन द प्रोविजंस जिसके साथ आपका केस स्टडीज, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सेक्शन 54D। 54D क्या है? कंपल्सरीली एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसमें क्या है? कंपल्सरीली एक्विजिशन हुआ था। कंपल्सरी एक्विजिशन भी स्टडी, उसमें क्या हुआ था? अब कंपल्सरीली एक्विजिशन होने के बाद
आपका जो कैपिटल गेन्स है उस कैपिटल गेन्स में आप कैसे डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट या तो लैंड या बिल्डिंग है, फॉर्मिंग पार्ट फॉर एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। वो एसेट को क्यों कैसे यूज करता था एसएससी, फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यूज करता था। एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, और ये जो कैपिटल एसेट है इट वाज कंपल्सरीली एक्वायर्ड, ठीक है, कंपल्सरीली एक्वायर हुआ था, और ये एसेट मिनिमम 2 साल के लिए एसएससी यूज करता था। ये सब कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, तभी आपको 54D का बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट, एक तो आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए लैंड और बिल्डिंग, और आप उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए कितना दिन से काम कर रहे हैं, 2 साल, मिनिमम 2 साल आप उसको यूज किए हैं फॉर दिस पर्पस, एंड उसके बाद यू हैव ट्रांसफर्ड इट। ट्रांसफर्ड कैसे, नॉट एट योर ओन विल बट एट द विल ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। वो आप अपना मन से नहीं बेचे, आपको बेचना पड़ा बिकॉज इट वाज कंपल्सरीली एक्वायर्ड फ्रॉम यू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो पैसा है कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट या आरबीआई आपका कंसिडरेशन फाइनल करता है, उसके बाद जो आपको कंसिडरेशन मिलता है उसमें से जो कैपिटल गेन्स हो रहा है, वो कैपिटल गेन्स का पैसा आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस कि इसमें इस सेक्शंस में जितना भी रिडक्शंस का है 54 सीरीज, इसमें हमेशा क्या बोलता है, घर बेच के घर खरीदो, एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीदो, लैंड एंड बिल्डिंग आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे तो वापस उसी में इन्वेस्ट करो। हर सेक्शन ऐसा नहीं है, देयर विल कम सेक्शन जहां आप एक चीज बेच के दूसरा चीज खरीदने से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो डोंट थिंक कि हर सेक्शन में जो बेच रहे हैं वही आपको खरीदना है तो ही बेनिफिट मिलेगा, नो। ये कुछ कुछ 2-3 सेक्शन ऐसा है, बाद में यू विल हैव सेक्शंस जहां आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। कोई एक कैपिटल गेन कैपिटल एसेट बेच के अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं आपको बेनिफिट मिलेगा। आप कोई पर्टिकुलर कैपिटल एसेट बेच के, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी बेच के अगर आप घर खरीदे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देयर विल कम सेक्शंस जहां डिफरेंट चीज का ट्रांजैक्शंस है, तो इट इज नॉट कि जो बेचते हैं वही खरीदना है, वैसा नहीं है। ये सेक्शंस में ऐसा है 54, 54B, 54D, जो आप बेच रहे हैं आपको उसका गेन से उसी में इन्वेस्ट करना है। इसका पैसा भी आप कैपिटल अकाउंट स्कीम में डाल सकते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर, जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा। वही सेम सपोज 3 करोड़ का आपका कैपिटल गेन है, आप 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरा लैंड खरीदने के लिए, तो आपको सिर्फ 2 करोड़ का ही बेनिफिट मिलेगा, 1 करोड़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आपको कब खरीदना है, विदिन 3 इयर्स ऑफ जब आप अपना कंपेंसेशन रिसीव किए, जिस दिन कंपेंसेशन रिसीव किए उसमें उससे 3 साल में आपको नया लैंड बिल्डिंग खरीद लेना है, एंड उसमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप खरीदेंगे। एंड यहाँ लॉक इन पीरियड इज 3 इयर्स, यहाँ पे भी आपका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स है। नाउ इज 54EC। 54EC में डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स। यही हम बोल रहे थे, सर्टेन बॉन्ड्स अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको गेन्स मिलेगा। एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। वहां पे 54 पहला डी में क्या था, लैंड और बिल्डिंग आप कंपल्सरीली एक्वाजिशन का बात था, और आप यूज क्यों कर रहे थे, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आपके पास है, लैंड और बिल्डिंग भी है, तो आप उसको बेच दीजिए, उसमें से जो आपका पैसा आएगा वो आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में। मतलब कुछ जो नीचे एसेट्स लिखा हुआ है, सिर्फ इन एसेट्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कौन सा एसेट्स है,
बॉन्ड्स, बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, आपको बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करना है और वैसा बॉन्ड्स जो रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, और वो बॉन्ड इशू कौन करेगा? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनी अदर बॉन्ड विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई और बॉन्ड को नोटिफाई करता है तो उसको भी आप इन्वेस्ट करने से कर सकते हो। मतलब लैंड और बिल्डिंग आप अगर आपके पास है, आप उसको बेच के कितना दिन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इतना दिन हम लोग जो सेक्शंस पढ़ रहे थे उसमें 2 साल 3 साल ऐसे था, इसमें है विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है इन एनी ऑफ द बॉन्ड्स विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, और वो बॉन्ड आपका मन का नहीं चलेगा। कौन सा बॉन्ड? जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही 5-6 बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे नेशनल हाईवे का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स। नाउ हाउ यू विल मेमोराइज दिस सेक्शन? पहला सेक्शन तो घर बेच के घर 54, 54 बी में क्या है? लैंड बेच के लैंड, और 54 डी में क्या है? लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन। नाउ सी 54 ईसी, 54 ईसी आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स का बात हो रहा है। नाउ ईसी जब आपको दिमाग में आएगा 54 ईसी, तब आपको ये याद आना चाहिए कि ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला सेक्शन है। इलेक्ट्रिफिकेशन वाला सेक्शन से आप उसको याद रख सकते हैं, तब आपको याद आ जाएगा 54 ईसी में क्या लिखा हुआ था। So this is one of the shortcut which you can use for this 54 EC section। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला पार्ट जिस पर लिखा है तो आपको याद आ जाएगा कि ये बॉन्ड्स वाला सेक्शन है, जहां हम लैंड बिल्डिंग बेच के 6 महीना में हमको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना था टू गेट बेनिफिट अंडर 54 EC। ठीक है, और आपको विद इन 6 मंथ्स ये आपको इन्वेस्ट करना है। नाउ लैंड बिल्डिंग में आप बेच दिए, हाँ लैंड बिल्डिंग में बेच के आप 6 महीना में इन्वेस्ट कर दिए। ओके, व्हाट विल बी द मिनिमम? मिनिमम वही जो आप इन्वेस्ट करते हैं या जितना आपका कैपिटल गेन्स होता है, व्हिचएवर इज लोअर। ओके, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख का लिमिट है, 50 लाख से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब जैसे उसमें था क्या बोलते हैं, बाकी जो घर वाला सिचुएशन था उसमें बिलो 2 करोड़, अबव 2 करोड़, इनफाइनाइट अमाउंट था, कोई अमाउंट डिफाइन नहीं था। और नेक्स्ट वाला में लास्ट 3 वाले तीनों में कहीं भी अमाउंट डिफाइन नहीं था, बट 54 इसी में अमाउंट डिफाइन है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का ही कर सकते हैं। सपोज कोई लैंड बिल्डिंग बेच के आपको 1 करोड़ का फायदा हो गया, कैपिटल गेन्स 1 करोड़ है, तो आप उसका सिर्फ 50 लाख ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके 54 ईसी का बेनिफिट ले सकते हैं। पूरा 1 करोड़ आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट 50 लाख रुपीस को आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, और कोई डिडक्शन ले सकते हैं इफ इट कम्स इन दिस 54 सीरीज, एल्स आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें 50 लाख का है कि आप 50 लाख से ज्यादा रुपया 54 ईसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। Now you have to remember these deductions, क्योंकि ये आपका और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसको याद रखे बिना, बिकॉज ये प्लेन थ्योरी है और आपको जितना आपका एक कैपिटल गेन्स जैसे कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा, बट सब में बोल देगा कि वो घर बेच के 2 साल में घर लिया था, तो आपको समझना पड़ेगा ये 54 का बात कर रहा है, और जो कैपिटल गेन्स आएगा उसको आपको टैक्स नहीं दिखाना है, उसको आपको वापस इन्वेस्टमेंट दिखाना है, एंड यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ 54 सेक्शन 54। इसीलिए आपको सारा कंडीशंस के साथ यू हैव टू मेमोराइज दिस सेक्शंस, और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इसी तरीके से आपको चैप्टर 6A का जो चैप्टर है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, वो भी आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी ऐसा वेरियस डिडक्शंस है अंडर वेरियस सेक्शंस। वैसे टैक्स में आपको 80% यू हैव टू मेमोराइज, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिना मेमोराइज किए, क्योंकि जब तक आपको कंडीशंस और आपको ये प्रोविजंस याद नहीं रहेगा, यू विल नॉट सॉल्व सम्स। एंड टू मेमोराइज दिस प्रोविजंस यू हैव टू सॉल्व सम्स। आप सोचेंगे थ्योरी पढ़ पढ़ के रिवाइज कर करके याद करेंगे,
तो आपका पॉइंट्स छूटेगा। यू हैव टू डू सम्स। सम्स में जब आपका प्रोविजन आएगा देन यू हैव टू थिंक कि इस प्रोविजन में आपका कौन सा प्रोविजन कीप करता है। मींस इट्स अ बोथ वे प्रोसेस। सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया वो भी नहीं होगा, सिर्फ सम्स कर लिया तो सम्स तो बनेगा ही नहीं। तो बोथ द वे यू हैव टू गो विद टैक्स, एंड टैक्स इज द सब्जेक्ट व्हिच विल रिक्वायर ह्यूज टाइम। तो आप वैसे ही अपना प्लान कीजिए कि आपको टैक्स का एग्जाम कैसे देना है, एंड अगर देना है तो फिर उसका कैसा प्रिपरेशन करना है। यू हैव टू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज 54EE। 54EE में क्या है, एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यहाँ पे एसएससी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद क्या करेगा, एसएससी एक्वायर करेगा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड यूनिट्स, सॉरी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में क्या बोला है, यूनिट और यूनिट्स इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2019। ऐसा यूनिट और यूनिट्स में आपको इन्वेस्ट करना है जो 2019 के पहले आपको इशू किया गया था। वो यूनिट्स में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे विद इन 6 मंथ्स ऑफ ट्रांसफर, तब आपको सेक्शन 54EE का बेनिफिट मिलेगा। नाउ सी, इसमें आपका खुला बोल दिया है कि 54EE का बेनिफिट लेने के लिए आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करो, बेच दो, उसके बाद जो उसका पैसा है वो आप कहाँ इन्वेस्ट करिए, जो यूनिट्स है विच आर इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2019। तो पहला वाला में क्या था, 50 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट कर सकते थे। सपोज आपको लैंड बिल्डिंग बेच के कितना का फायदा हुआ था, 1 करोड़, तो आप तो सिर्फ 50 लाख के बेच इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बॉन्ड्स वाला सेक्शन में। जो 54EC का था इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स, मतलब वो बॉन्ड्स वाला सेक्शन में आप सिर्फ 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते थे, और जो आपके पास 50 लाख बच गया वो 50 लाख आप इस सेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 54EE में आप इन्वेस्ट करिए, इसमें भी आपका लिमिट है 50 लाख, तो बचा हुआ 50 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि आपको यही चीज बेच के यही चीज करना है। ये रिलेटेड लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म को भी लॉन्ग टर्म एसेट बेच के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म एसेट आप बेच दिए, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिए, फाइन, you have fulfilled the criteria of long term asset also, and उसके बाद 50 लाख आप बॉन्ड्स वाला सेक्शन में इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले लीजिए, और 50 लाख जो आपके पास बच जाता है वो 54EE में इन्वेस्ट करके ले लीजिए। तो क्या होगा, आपको कैपिटल गेन्स कहीं भी नहीं देना पड़ेगा, और 50-50 लाख का जो क्राइटेरिया है वो भी आप फुलफिल कर लेंगे। और दोनों का ही इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू इन्वेस्ट either in bonds or in units. Suppose आप ज्वेलरी बेचते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, सपोज आप ज्वेलरी बेचते हैं, ज्वेलरी बेच के आपको फायदा होता है 70 लाख रुपीस का। आपको ज्वेलरी बेच के फायदा होता है 70 लाख रुपीस का। नाउ व्हाट हैपेंस, ज्वेलरी बेच के जो 50 लाख 70 लाख रुपीस का फायदा हुआ है उसमें आप 50 लाख इसमें डाल सकते हैं 54EE में, यूनिट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ इशूड बिफोर 1/4/2019। लेकिन आप उसको बॉन्ड्स वाले में नहीं डाल सकते, जो आपका रेस्ट 20 लाख बच गया उसको आप बॉन्ड्स वाले में नहीं डाल सकते, क्योंकि बॉन्ड्स वाले में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपका वो लैंड और बिल्डिंग ही होना चाहिए। तो ज्वेलरी भी अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आप वहां नहीं डाल सकते। सो यू हैव टू सी कि कहाँ क्या मेंशन है। अगर सेक्शन ओपन है, जैसे 54EE ओपन सेक्शन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के आपको यूनिट्स खरीदना है, तो दैट कैन बी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो वहां ज्वेलरी बेच के भी आप फायदा ले सकते हैं। बट उसके पहले वाले ने आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको लैंड और बिल्डिंग बेच के ही अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। तो वहां पे यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप लैंड एंड बिल्डिंग ही बेचो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ज्वेलरी अगर आप बेचें तो आप 54EC का बेनिफिट नहीं ले सकते।
नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 54F। 54F में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट बेच दीजिए और उसके बाद आपको खरीदना क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। नाउ जब हाउस प्रॉपर्टी का बात कर रहे थे 54 में, उसमें क्या था, हाउस प्रॉपर्टी बेचना है और खरीदना है हाउस प्रॉपर्टी। मतलब वहां पे लिखा नहीं था कि हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है, वहां पे लिखा था परचेज ऑफ हाउस। It may be house property, it may not be house property in the sense कि वो house property के head में taxable नहीं है। बनाना या खरीदना आपको घर ही है, लेकिन आप उसको वो घर भी यूज कर सकते हैं जो आपका अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा। और यहाँ पे, वहाँ घर बेच के घर था, यहाँ पे है कोई भी कैपिटल एसेट बेच के घर। मतलब अगेन आप यहाँ पे लैंड बिल्डिंग बेच के भी घर खरीद सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 54F का। आप ज्वेलरी बेच के भी घर खरीद सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा 54F का। तो 54F का बेनिफिट लेने के लिए आप कोई भी कैपिटल एसेट जो आपका मन आप बेच सकते हैं, बट आपका कंडीशन ये है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, मतलब घर में ही इन्वेस्ट करना है। एंड वहां पे 54 में आपका क्या था कि आपको हाउस प्रॉपर्टी, आपको घर खरीदना है बट उसका यूज आप बिजनेस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। बट 54F में ये क्लियरली मेंशन है कि आप जो घर खरीदेंगे उसका यूज या उसका टैक्सेशन अंडर सेक्शन 22 होना चाहिए। अब अंडर सेक्शन 22 अगर आपको टैक्सेशन करना है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड में ही आपको करना है, व्हिच मींस either you do it for self occupation, मतलब अपने लिए यूज करो, या फिर उसको लेट आउट करो, और आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीन एसएससी, सॉरी 54E। 54F में क्या है, एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचेगा तब तो आपका 54 एप्लीकेबल हो जाएगा, 54F नहीं हो पाएगा, 54 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, ये घर छोड़ के कुछ और बेचो। एसएससी मस्ट एक्वायर वन रेजिडेंशियल हाउस, उसको वन रेजिडेंशियल हाउस ही एक्वायर करना है। यहाँ पे वो 2 करोड़ से कम और ज्यादा वाला लिमिट नहीं है, आप एक ही घर यूज कर सकते हैं। वहां पे जैसे था कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा का गेन्स है तो आप 2 घर भी यूज कर सकते, परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पर 54F में सिर्फ एक घर है, एक ही घर आप खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। Such house should be situated in India, foreign नहीं होना चाहिए। SSC does not own more than one residential property income now। नया घर जो है इसको छोड़ के आपका सिर्फ एक ही घर होना चाहिए, एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। अभी जो आप एक नया घर खरीदे 54F का बेनिफिट लेने के लिए, वो इज ओके, उसको छोड़ के आपके पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो 54F का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ 54F। तो आपके पास एक ही घर होना चाहिए, और आप कब कर देंगे, 2 इयर्स में या तो परचेज कीजिए या 3 इयर्स में कंस्ट्रक्ट कीजिए। एंड यहाँ पे क्या है, सी within a period of 1 year before or 2 year after the due date, ये सेम है, ये वहां भी वही था। घर आपका या तो 1 साल पहले within 1 year, मतलब लास्ट 1 ईयर में खरीदा हुआ, या जिस दिन आप सेल किए उसके बाद 2 इयर्स में आप उसको खरीद रहे हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो आफ्टर 3 इयर्स। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इसका भी पैसा डाल सकते हैं, और आपको कितना का डिडक्शन मिलेगा, इतना देर हम लोग डिडक्शन कर रहे थे जितना आप इन्वेस्ट किए और आपका कैपिटल गेन्स व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको या तो कैपिटल गेन या प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। नाउ यहाँ पे सी, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया है वो लोग कि इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू हाउस इनटू कैपिटल गेन्स बाय नेट सेल कंसीडरेशन। सो डोंट मेमोराइज, डोंट ट्राई टू मेमोराइज, पहले आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका नेट सेल कंसीडरेशन
नेट सेल कंसिडरेशन, सपोज आपका नेट सेल कंसिडरेशन क्या हो रहा है, नेट सेल कंसिडरेशन सपोज 50 लाख रुपया है, ओके, और आपको कैपिटल गेन्स कितना हुआ है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन्स है, ये आपका सेल प्राइस है और ये आपका कैपिटल गेन्स है, और आप इन्वेस्ट कितना किए, सपोज यू हैव इन्वेस्टेड 40 लाख रुपीज। तो इतना देर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो आपका कैपिटल गेन्स है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है व्हिचएवर इज लोअर, मतलब 10 लाख और 40 लाख व्हिचएवर इज लोअर, आपको 10 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए था, बट 54F में ऐसा नहीं है। 54F में आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन मिलेगा। आपका 50 लाख के लिए अगर 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है तो 40 लाख के लिए आपका कितना कैपिटल गेन होगा, सिर्फ उतना ही कैपिटल गेन आपको डिडक्शन मिलेगा। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन का बात है। आपका इतना देर क्या था, जो इन्वेस्ट की और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर, मतलब 40 लाख और 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर, इतना ही कहानी चल रहा था। लेकिन 54F में आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगा, या तो कैपिटल गेन या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स व्हिचएवर इज लोअर। तो आपको कितना मिलेगा, 8 lakhs whichever is lower, 10 लाख और 8 लाख whichever is lower, 8 लाख रुपए। अगर नॉर्मल सेक्शंस, जो बाकी सेक्शंस था उसमें आपको 2 लाख का ज्यादा बेनिफिट था, क्योंकि 10 लाख का कैपिटल गेन्स और 40 लाख आपका इन्वेस्टमेंट, whichever is lower 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स मिलता। लेकिन 54F में आपको सिर्फ 8 लाख का ही कैपिटल गेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, कैपिटल गेन्स और प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स व्हिचएवर इज लोअर। और यहाँ पे ये लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन नहीं लिख के ऐसे आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते जैसे पता नहीं कितना बड़ा बात लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू कैपिटल एसेट, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन। वही है, आपको अपना घर 3 साल तक बेचना नहीं है, जो नया घर आप खरीदे हैं वो आपको 3 साल तक बेचना नहीं है, एंड रेस्ट इज ऑल सेम। आपका जो 54 में था बाकी वही सब सेम है, उसमें और कोई चेंज नहीं है, बट ओनली दिस, इतना सा चेंज है कि आपका जो अमाउंट है दैट इज कैलकुलेटेड इन अ डिफरेंट वे, एंड आपको कोई और एसेट खरीद के घर खरीदना है, सॉरी कोई और एसेट बेच के घर खरीदना है। कल अपने कैपिटल गेन्स खत्म कर देंगे, टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ कैपिटल गेन्स, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो अदर सोर्सेज आई विल स्टार्ट। एंड अदर सोर्सेज खत्म होने से आपका फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद योर प्रोसीजरल पार्ट की फिर आपका वो प्रोसीजरल पार्ट की पहले आपका वो डिडक्शंस वाला चैप्टर है व्हिच यू हैव टू डू, ताकि आप अदर हेड्स का अगर सम आए और उसमें अगर डिडक्शन दे दे तो आपका सम गलत हो जाएगा अगर आप डिडक्शंस वाला प्रोविजंस नहीं अप्लाई करेंगे, दैट इज अ रिलेटेड चैप्टर। डिडक्शंस वाला चैप्टर आपको करना पड़ेगा, क्लबिंग बोल के एक चैप्टर है जो भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज माइनर का इनकम, सपोज अ सन इज कमिंग की माइनर का इनकम, माइनर के हाथ में इस सोर्स से अदर सोर्सेस से कुछ इनकम आया है, तो माइनर का इनकम टैक्सेबल नहीं होता, वो क्लब हो जाता है अपने पेरेंट्स के इनकम के साथ। तो द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग आल्सो यू शुड नो, तभी आपको वो अगर कोई हेड से इनकम आ गया, क्वेश्चन आ गया फॉर माइनर, वो गलत हो जाएगा इफ यू टैक्स इट अंडर द हेड माइनर। कुछ केसेस में छोड़ के बाकी केसेस में माइनर का इनकम अपना पेरेंट्स का इनकम के साथ क्लब होके पेरेंट्स को टैक्स देना पड़ता है, नॉट द माइनर, वो सब है। उसके बाद टीडीएस obviously TDS is very important for exam, and your procedural part, प्रोसीजरल पार्ट में है कि आप इतना देर सीख रहे थे टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स का रिटर्न, जो आपका कंप्यूटेशन है, आपका जो इनकम है वो कंप्यूट करके टैक्स पेमेंट करके आप अपना रिटर्न फाइल कर दिए,
उसके बाद जब असेसिंग ऑफिसर उस रिटर्न को देखता है तो उसमें कैसे प्रोसीजर, इफ यू आर इन डिफरेंट नोट, मतलब सपोज आपके हिसाब से कुछ और इनकम आ रहा है, असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से कुछ और इनकम आ रहा है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, व्हाट आर द प्रोसेस, उसका पार्ट है। एंड फिर थोड़ा बहुत वो रिटर्न फाइलिंग, पैन कार्ड, वो सब का चैप्टर्स है। तो दो चैप्टर्स शायद जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू दिस, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम के साथ आपका डिडक्शन, क्लबिंग और टीडीएस ये आपको करना है। एंड वन मोर चैप्टर इज योर set off and carry forward. Set off and carry forward is also related with your heads income, 5 heads, because आप पढ़ा था कि unabsorbed depreciation कैसे set off होता है, कैसे carry forward होता है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो वो किसके साथ set off हो सकता है, जो कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स का लॉस हमेशा कैपिटल गेन्स का प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। Those are the chapters which is, that is also a chapter which is related to your 5 heads. तो वो सेट ऑफ वाला चैप्टर भी आपको 5 हेड्स का चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा इसके बाद आपका लॉ का क्लास है, तो लॉ का क्लास जब होगा तब आपका ग्रुप में उसका लिंक और मैसेज भेज दिया जाएगा। अभी कोई बंद कर देगा? हाँ, अभी यू कैन एंड द कॉल।